ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं. The river coming from the northern mountain are involved in the depositional work. What is the depositional work? Like erosion, like weathering. So after the processing, these are the process of the weathering. इसके बाद जो भी sediments आते हैं या जो भी आपका deposits होते हैं, ये northern plain के lower course में इसको collect कर देते हैं. That due to the gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. Let me explain here. So like these are your mountains. When after melting of the glacier, जब rivers आपकी यहाँ से flow करती हैं, so it is in a very high speed, बहुत तेज़ी से बहती हैं, तो अपने साथ ही बहुत सारे sediments लेकर आते हैं, बहुत सारे pebbles आते हैं, या आपके साथ बहुत सारी vegetations आती हैं. जब ये lower course में पहुँचती हैं, this is your लोअर कोर्स, जब ये लोअर कोर्स में पहुंचती हैं तो यहाँ पर आके इनकी स्पीड स्लो हो जाती है. वाटर तो फ्लो करके आगे चला जाता है, लेकिन जो इसके साथ सेडिमेंट्स होते हैं, ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये लोअर कोर्स में बेड की फॉर्म में बिछा देते हैं. तो इट इज़ लाइक अ बेड, ये एक बेड की फॉर्म बन जाती है. यहाँ पे उनकी आके लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती है. नाउ the river in their lower course split into numerous channels, as I earlier told you that when the river divided into numerous channels to the deposition process, so that is called the distributaries. The northern plain is broadly divided into 3 sections. Northern plains को उसके बाद हमने फिर 3 sections में divide करा. The first section is the western part of northern plain is referred as the Punjab plain. So first is the Punjab plains. So this was formed by the Indus and its tributaries. Most of the part of this in the पाकिस्तान में ही रहता है. पाकिस्तान में इसका most of the part lie करता है. The larger part of this plain is in the Pakistan. The Indus and its tributary. Remember, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है that what are name the tributaries of the river Indus. So that is the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj. These all are originate from the Himalaya. This section of plain is dominated by the Doab. It is very important, Doab. Do you know that Doab is made up of 2 words, Do plus Ab. Do means 2, Ab means water. So where 2 places, that place between the two water bodies, that place is known as the Doab. So the one more example, Punjab. So it means Pan matlab 5, Jab Panj matlab 5, Ab matlab वाटर. सो 5 रिवर्स जो हैं आपकी पंजाब में, एज आई टोल्ड यू, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज. सो दैट्स वाई दैट प्लेस इज नोन एज द पंजाब. द नेक्स्ट सेक्शन, द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड द टेस्टा रिवर. तो गंगा प्लेन का जो आपका नॉर्दर्न प्लेन का जो सेकेंड सेक्शन है, दैट इज़ योर गंगा प्लेन. इट एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड टेस्टा रिवर. It is spread over the states of the northern India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and the West Bengal to its east, and particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. So there are the 3 sections of the northern plain. One is the Punjab plain, second is the Ganga plain, and the third is the Brahmaputra plain. Do you know that class that Ganga and Yamuna, when it comes from the Himalaya, और ये दोनों नदियाँ आपकी इलाहाबाद में त्रिवेणी में जाकर मिलती हैं, तो उसके बीच का जो पार्ट है, गंगा और यमुना के बीच में जो आपका एरिया डेवलप है, दैट इज़ मेन एज द दोआब. दैट इज़ द दोआब. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट. नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली these are not flat. There is so much variation. That vast plain also have a diverse relief feature. There are up and downs. According to the variation in the relief feature, northern plain can be divided into 4 regions. According to the relief, remember, I'm not talking about the broad section of the northern plain. I'm talking about the relief. जो नॉर्दर्न प्लेन का रिलीफ है, उसको भी हमें 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो it is relief feature. The northern plain can be divided into 4 regions. The river after descending from the mountain,
जब आपकी रिवर्स माउंटेन से निकल कर आती हैं और अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती हैं, डिपॉजिट लाइक पत्थर, जिसे आप पेबल्स बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो टूट टूट कर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो वो जब नैरो बेल्ट बनाती हैं, जब फुटहिल्स में आ जाती हैं, 8 to 16 किलोमीटर तक अपना पूरा एक ये लेयर कवर करती हैं, तो वहाँ पे पेबल्स को छोड़ देती हैं। और आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि जब आप शाकुंभरी देवी जाते हैं, शिवालिक रेंज का ही वो शाकुंभरी एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि नोड्यूल पत्थर रखे हुए हैं, वहाँ पेबल्स हैं, पानी उनके नीचे से बह रहा है। दीज वाटर आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, बट एक्चुअली जब ये प्लेन्स में आते हैं तो इनका स्लोप से नीचे आने पर, प्लेन्स में आने पर इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, इनकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये पत्थर के नीचे से रिस कर बहना शुरू कर देते हैं। सो दिस एरिया इज़ नोन एज द भाबर। I will share one screenshot of this diagram. All the stream disappear in the Bhabar belt. South of this belt, भाबर के साउथ में अगर हम जाते हैं, सो रिवर रीएमर्ज, वो जो पत्थरों के नीचे से पानी रिस के निकल रहा है, वाटर इज़ फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द स्टोन्स, तो ये आगे जाके मार्शी एरिया में मर्ज हो जाता है। वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन, जो दलदल ही होता है, थोड़ा एरिया मिट्टी के साथ होता है, वहाँ पे आपकी वेजिटेशंस भी बहुत होती हैं, दैट एरिया इज़ नोन एज द तेराई। सो थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है, बट दीज आर कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू सेटल डाउन देयर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। जब हम इंडिया का पार्टीशन, तो उसके बाद पीपल स्टार्टेड टू searching for the land. So what they did, they just cut down the trees, they just cut down the forest, they just clear down the forest, and they start to live in that area. So the largest part of the northern plain is formed of older alluvium. So older alluvium se to they lie above the flood plain of the river and present a terrace like feature. Like older alluvium, there are two kind of alluvium, older and the न्यू एलुवियम। जो ओल्डर एलुवियम है, जैसे ओल्डर, हम ओल्डर किसको बोलते हैं, पुरानी चीज़ को, और हमने एक वर्ड सुना है भांगार, भंगार लाइक पुराना सामान, कबाड़ी वाला सामान। सो हम इसको वर्ड को उसी से रिलेट करते हैं। ओल्डर एलुवियम, जो ओल्ड डिपॉजिट्स हैं सॉइल के, दीज आर, तो उनसे जो लैंड सेक्शन बना है आपका, दैट इज़ नोन एज द भांगर रीजन। सो द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट। कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत गुड क्वालिटी में जो एक कंकड़ होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, दे आर द गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। सो द न्यूयर यंगर जो डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स में, उसको खादर बोलते हैं। एक्चुअली खादर एरियाज जो होते हैं थोड़े डीप फॉर्म में बने होते हैं। सो इसके इस पार्ट में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ऊपर से जो भी वाटर आएगा वो सारा इधर ही कलेक्ट होगा। सो ये आपका फ्लड प्रोन एरिया होता है खादर में। और जो फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हर 1 साल 2 साल बाद सॉइल्स रिन्यू होती हैं, सॉइल्स का न्यू फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर कॉल्ड द खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। सो दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ वेरी आइडियल फॉर द intensive agriculture. Is it clear? So this is all about the northern plains. I will send you the question answers based on the northern plains. If you have any query, then you can ask me in the group. Thank you.